ہماری زندگیوں کا مالک ہمارا خدا، ساری عزت حشمت اور بزرگی کے لائق ہمارا خدا ضرور ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہی لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، اس یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی۔ سب خوش ہے؟ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم آپس میں محبت رکھو اور میرے کلام پر عمل کرو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیسے شاگرد بننا ہے، آپس میں محبت کرنی ہے اور خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ جب تک ہم اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، میرا بھائی میری بہن، ہم یسوع مسیح سے پیار نہیں کرتے، ہم یسوع مسیح کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ ہم میں یسوع مسیح کی محبت اسی وقت ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو دل سے قبول کریں گے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو بہنوں اور بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، بہنوں اور بھائیوں میں محبت ہوتی ہے۔ جب محبت بہنوں اور بھائیوں میں ہوگی تو تبھی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہیں۔ تو اگر ہم آپس میں محبت نہ کریں، عبادت پرستش جتنے مرضی زور سے کریں، جب محبت نہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، اگر محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ۔ بائبل مقدس کے اندر پولس رسول کہتا ہے ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن ان کے اندر افضل محبت۔ بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت، یہاں پر جو ایسی ہے یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی دوسرا محبت نہیں کر سکا۔ تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کو، یعنی کہ گناہ کی بستی کو بخش دیا۔ یہ دنیا گناہ کی بستی جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور اس قدر وہ محبت کرتا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کے لیے بخش دیتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، کس پر؟ اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو زندگی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی۔ پنجابی دی مثال ہے 100 گز رسا تے سیرے تے گل، ہم جدھر مرضی بھاگ لیں، جانا ہم نے خدا کے پاس۔ ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے پاس جائیں تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر جائیں، مجرم بن کرنا چاہیے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں تو سر جھکا کے نہ کھڑے ہوں بلکہ خوشی کے ساتھ سر اٹھا کر اپنے خدا کو دیکھیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو، اسی میں زندگی ہے۔ یسوع کے بغیر کہیں پر بھی زندگی نہیں ملے گی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں،
बहुत से लोग हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ सब्ज बाग ही है, उनके अंदर हकीकत नहीं है। हकीकत एक ही है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, लेकिन मजदूर भाग जाता है। जो अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा पता कौन होता है? जब वो भेड़ों को लेकर जाता है तो भेड़ें पीछे पीछे चलती है, जब वो भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं तो उसकी आवाज को भी पहचानती है। जो अच्छा चरवाहा है उनके खुराक के अंदर से वो जहरीली जड़ी बूटियां जो है वो निकाल कर अपनी कमर के पीछे डाल देता है, लेकिन अपनी भेड़ों को नुकसान नहीं होने देता। अगर वो जहरीली बूटी खा लेंगी तो भेड़ें या तो बीमार हो जाएंगी या मर जाएंगी। लेकिन अच्छा चरवाहा क्या करता है? पीछे कपड़ा बांधता है और उसकी खुराक जहां पर से उसने फीड करनी है वहां पर से जहरीली बूटियों को उठाकर उस कपड़े में डालता है और उसकी अपनी कमर जख्मी हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं, कि वो अपनी भेड़ों के लिए छान देता है और छान देते हुए कहता है बाप इनको माफ कर। साढ़े जो किले ने जड़े एक दूसरे को माफ करते, हम माफी नहीं देते। हम अपने दिल के अंदर उस बात को बांध लेते हैं, जब मौका मुझसे मिला तो फिर तेनू दसा। हम इंतकाम अपने दिल के अंदर बिठा लेते हैं। कुछ जरूरत है माफ करो तो तुम्हें भी माफ करो। आज का जो बाइबल मुकद्दस में से हमारे लिए खुदा के कलाम का عنوان है वो है यीशु शाफी। यीशु शाफी है, यीशु मुनच्छी है, यीशु शाफी है, यीशु मोहब्बत करने वाला है। जब वो मोहब्बत करता है तो कहता है बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, किसी कोने में चले जाए, जिधर चाहे चले जाए, लेकिन जो मोहब्बत यीशु में हमें मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलती। यीशु मसीह कहते हैं अपनी फिक्र मुझ पर डाल। कोई और कहता है ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो ये कह सके कि अपनी फिक्र मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र। वो कहता है मेरा जुआ पहन लो, मेरा जुआ नरम और मुलायम। अब ये नरम और मुलायम कैसा है? जुआ तो जिसके ऊपर आता है उस पर बोझ डालता है, लेकिन यीशु मसीह का जुआ वैसा नहीं है जैसा जुआ दूसरों का होता है। जब हम बैल को जुए के अंदर देखते हैं तो उसके कांधों पर लकड़ी होती है, जुआ होता है, लेकिन यीशु मसीह का जुआ ऐसा नहीं जो हमारे कांधों पर जुआ रख दे, बोझ रख दे, बल्कि यीशु मसीह का जुआ हमारे बोझ उठा लेता है, क्योंकि उसका जुआ नरम और मुलायम। इसलिए यीशु जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं करता, और यीशु जैसा दुनिया में न आसमान पर, न जमीन पर, न जमीन के नीचे, कायनात के किसी भी कोने में यीशु जैसा कोई नहीं। सुआए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े और सीखेंगे यीशु शाफी है।
बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। एक ही आयत को तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जिसने निकाल लिया हो वो पढ़ सकता है। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आमीन। खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए कुछ लम्हों के लिए अपने सर को झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सारी बरकत के लिए, जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और शुक्रगुजारी करते तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरी हजूरी में पढ़ा और सुना गया। ऐ बाप, तू जानता है हम इंसान कमजोर, ना कल, ना धलाई, ना हिकमत, ना फहम, कुछ भी नहीं कि खुदा हम तेरे कलाम को सीख सकें। इसलिए बाप तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने पाक रूह को भेज ताकि हम सब तेरे बेटे और बेटियां तेरे रूह से तेरे कलाम को सीखें, क्योंकि तेरा रूह कुद्दुस ही है जो सीखने सिखाने में हमारा उस्ताद बनता है। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस आयत को पढ़ा गया उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता? ये जो उस है, इस उसको हम 5वें बाब की पहली आयत के अंदर देखते हैं कि ये उस है कौन। जब हम पहली आयत के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर यहूदियों की एक ईद है और उस ईद के वक्त यरूशलेम के पास एक हाउस है जिसका अब्रानी के अंदर उसका नाम है बैते हस्ता और उसके 5 बरामदे भी हैं और उन 5 बरामदों के दरमियान एक हाउस बना हुआ है जो पानी से भरा होता है। उस पानी से जो भरा हुआ हाउस है, उस पानी की खासियत है कि वक्त मुकर्रा पर खुदा अपने फरिश्ते को भेजता और उस हाउस के पानी को वो फरिश्ता हलाता तो जो पहले उसमें उतर जाता है वो शिफा पा जाता है। वहां 5 बरामदों के अंदर बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले, कोड़ी, मासूर, मफलूज, पसमुर्दा, ऐसे बहुत से लोग वहां पर पड़े हुए। जब पानी फरिश्ता हलाता है तो उनमें से जो पहले उस पानी को छू लेता है वो शिफा पाता है। और ये जो उस जिसका जिक्र 6ठी आयत के अंदर है, ये वो है जो 38 साल से है। 38 साल से ये शख्स वहां पर पड़ा हुआ है और इसकी बीमारी इस कदर बड़ी है, इस कदर इसकी बीमारी इसके ऊपर गालिब आ चुकी है कि उस बीमारी ने इसे कमजोर कर दिया, इस कदर इसको लाकर कर दिया है
کہ جب وہ 38 سال تک پہنچتا ہے تو ان 38 سال کے عرصہ میں وہ اس پانی تک نہیں پہنچ سکا. 38 سال ایک زندگی کا حصہ ہے. 38 سال ایک زندگی بھی